Okay, let's start the reflection of light. Reflection of light means to say when a light ray enters from one medium to another medium. Okay, suppose this is a boundary line between the two medium, and the second medium is we are considering here that second medium is water, and when a light ray enters from first medium to second medium. Yes or no, beta? First medium to second medium. Here, this is the medium 1 and this is medium. And first medium is considered as air and second medium is considered as water. And the refractive index of air is mu1 and refractive index of water is mu. Yes or no? And we already know that air is rarer than the density of water, because the density of air is considered as low as compared to the water. Yes or no? So air is a rarer medium and water is considered as denser medium. Yes or no, beta? So what we have, when a ray of light, when a ray of light strikes on the interface between two medium, and this is the interface between two medium. So what will happen when the rays of light, the ray which travels towards the interface of two medium is called incident ray. Yes or no, beta? Incident ray. And here it is an imaginary line which is always perpendicular to the surface. That is called Normal. normal. Okay. Now the ray which is on the different path in the second medium, and that is called refracted ray. Refracted ray. Refracted. Why it is called refracted ray? Because the original path of the ray is like this. The original path of the light ray is It this, bends towards the and normal. when a ray of light enters from rarer to denser medium, that it bends towards the normal. Okay. Now Normal. there are some important terms related to the refraction of light. So first one, the incident ray, the ray which travels towards the interface between two medium is called incident ray, and the ray of light which travels in the second medium after the refraction is called refracted ray. And there is another term which is called angle I, and angle I is called angle of incidence. Angle of Yes. incidence. Angle of incidence means to say the angle made by the incident ray with normal is called angle of incidence, and the angle made by the incident ray, made by the refracted ray with normal is called angle R, which is called angle of refraction. refraction. Angle of refraction. Yes or no, beta? Angle of refraction. Let's start to write down the definition of the refraction of light. Okay, so what we have, the phenomena of bending of light, when it passes from one transparent medium, to another medium
is called refraction of light. Is called refraction of light. Yes or no, beta? Is called refraction of light. And tell me why it happens. Sir, because there is change in medium, change in density, so the speed of light also changes. Because the speed of light, because the density of the medium changes, and due to that change in velocity, due to change in the density of the medium, the position of the सर ट्रांसपेरेंट इम्पो मतलब जरूरी है क्या? हाँ बेटा ट्रांसपेरेंट, हाँ बेटा ट्रांसपेरेंट होगी तभी तो सर वो रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा सर बेटा। अगर मडी अगर वाटर है तो अगर उसमें तो सर ट्रांसपेरेंट होगा बेटा वो मतलब पार्शियली ट्रांस, रिफ्रैक्शन होगा। हाँ तो भी रिफ्रैक्शन होगा बेटा, पर ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना, चाहे वो लेस हो या ज्यादा हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपलसरी है। देन व्हाई इट हैपेंस, because it is directly related to the density of the medium, Change in medium. changing medium or density of the medium. And here we are using a word which is called optical density, which is called optical density. And optical density word is used for the medium in which light can enter, the medium in which light can't enter or can't transmit it from one place to another place, then it is called the mass density. यस होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, तो यहाँ से अगर मैं बोलूं आपसे कि इसमें से जो भी लाइट रेज है बेटा, वो क्या ट्रांसमिट हो सकती है क्या, बताइए। यस और नो? नो सर। नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है इसके पास में कौन सी डेंसिटी होगी बेटा, मास डेंसिटी होगी। यस और नो? बट वही चीज अगर मैं आपके पास बोलूं कि मुझे बोला गया कि यहाँ पर ये मीडियम है बेटा, तो इसमें देखिए लाइट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And the density which is related to this medium is called optical density. The density related to this medium is called optical density, and the density related to this medium is called Optical density. Mass density. This is called Mass density. mass density. Yes, तो mass per unit volume जो हम यूज करते हैं बेटा, वो किसके लिए यूज किया जाता है? किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है जिसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती, और लाइट किसी भी फॉर्म में उससे ट्रांसमिट नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट. सो व्हाट वी हैव, optical density is directly related to speed of light. Yes or no? Directly related to speed of light. So what we can say, first point, we can say that how we define the optically denser medium. Optically denser medium. How we define the optically denser medium? Sir, where the light will speed of light Speed of light decreases. Yes or no, beta? Decreases. And optically rarer medium? Speed of light increases. Increases. Optically rarer medium means to say speed of light increases. Yes, beta? Okay. And during the refraction of light, what are the quantities which changes, or what are the quantities which remains constant? We have already talked about it. So during the refraction of light, during the refraction of light, velocity
of light, wavelength of light change, but frequency of the light remains constant. Yes or no बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो सकती है या वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज हो सकती है. ओके, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. यस और नो? यस. एंड देयर आर सम टर्म्स जो हम ऑलरेडी पता है कि द रे व्हिच ट्रेवल्स इन द मीडियम 1 इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द रे व्हिच ट्रेवल्स इन मीडियम 2 इज कॉल्ड Refracted. refracted ray. Okay, the ray which travels in medium 1 is called incident ray, and the ray which travels in, यहाँ पर मीडियम 1 कर लेना होगा, मीडियम 1, और यहाँ पर क्या होगा, मीडियम 2 is called refracted ray. Yes or no बेटा? Refracted. तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या होगा, सिंपली देखिए, सपोज हमारे पास में क्या होगा बेटा, दिस इज द interface between two medium. When a ray of light strikes on the surface like this, and here it is a normal, and suppose there is a medium which is here, this is the water, which is second medium, and according to which we can say that if the ray of light is entered from one medium to another medium, then the speed of light will change like this. Then the speed of light will decrease because it is air and this is water. And during this reflection of light, this is called incident ray, and this is called refracted ray. Yes, and during the reflection of light, wavelength and velocity will change, and frequency remains constant. Yes or no beta? Yes, frequency remains constant. Yes, sir. Okay, and the angle made by the incident ray with normal is called angle of incidence, and the angle made by the reflected ray with normal is called angle of refraction. Refracted ray. Angle of refraction, and this is angle of incidence. Okay, and here air is considered as the rarer medium. Okay, and the refractive index of air is mu1, and refractive index of water is mu2, and water is considered as a denser medium. So देखिए क्या होगा बेटा, when light rays enters from rarer to denser medium, then the speed of light will decrease in second medium, and angle of refraction will also decrease. So we can say here that angle of incidence is greater than angle of refraction. Yes or no beta? Yes, and speed of light is maximum in air, which is c. So c is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second, which is maximum for air and vacuum. Okay, let's start the next. And the next one is when a ray of light, what happens when a ray of light enters from denser to rarer medium. Suppose this is the water. Yes or no beta?
This is water, and a ray of light is entering from medium 1. This is medium 1, which is water, and water is more denser than the air. Yes or no, beta? Denser, and here is air, which is medium 2. When light enters from denser to rarer medium, then it bends away from the normal. Yes or no? This is the normal, and it bends from away from the normal. So the path followed by the light ray will be like this. Yes or no, beta? And here, angle of incidence is the angle made by the incident ray with normal. Angle of reflection, which is angle made by the refracted ray with normal. Okay, so this is refracted ray, and this is incident ray. And here it is angle of incidence. Yes, so what we can write here, angle of incidence is less than angle of refraction, and if a ray of light falls normally on the mirror, normally on the interface, suppose this is the second medium, then what will happen if a ray of light falls normally? Normally means to say along the normal it falls on it, Perpendicular. then it will passes undeviated. Yes or no? Then it will pass undeviated. So here we can say that angle of incidence is equal to angle of refraction. Yes or no, beta? Which is equal to 0. 0 degree. Yes, here medium 1. This is medium. Okay. This is air, or this is water. It is also possible for when light enters from water to air. If a ray of light enters from, जैसे हमारे पास इंसिडेंट डायरेक्शन बेटा ये है ना, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, एंड ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे है. और अगर इंसिडेंट रे हमारे पास में वाटर में से होती तो भी हमारे पास सेम है. What we have as shown in above figures, what we have figure A, what we have, when a ray of light passes from optically rarer medium to optically denser medium, then it bends towards the normal, and when it bends towards the normal, so we can say angle of incidence is greater than angle of reflection. And according to figure B, what we can say, when a ray of light passes from optically denser medium to optically rarer medium, then it bends away from the normal, So what we can say, angle of incidence is less than angle of refraction, or we can say angle of refraction is greater than angle of incidence. Yes or no? And in third case, what we can say, when a ray of light falls along the normal, then it passes undeviated.
So what we can say, angle of incidence is equal to angle of refraction, which is equal to 0 degree. And there is another important point, that when a ray of light enters from one medium to another medium, then the intensity of the reflected rays of light, वो क्या होगी बेटा, is less than as compared to the incident rays. Yes or no? The intensity of the refracted rays, the intensity of refracted rays is less than the intensity of incident rays. और ऐसा क्यों होता है बेटा? Why the intensity of refracted rays is less than the intensity of incident rays? As there is a partial reflection and absorption of light rays, absorption of light at the interface. Yes, sir. यस, अंडरस्टूड बेटा. देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेज का मतलब क्या होगा कि हमारे पास में कोई भी जो लाइट रेज होगी बेटा, तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी, जो एनर्जी होगी, ठीक है, वो एनर्जी कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? तो सरफेस अब्सॉर्ब कर लेगा. एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम. ठीक है, तो वहां पर क्या होगा बेटा? पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होगा, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होगा. तो इस वजह से जो कंप्लीट जो लाइट एनर्जी हमारे पास रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो कंप्लीट वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है. ओके, let's draw examples of effect of refraction of light. ठीक है, तो डेली रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास में क्या होता है? अ पेंसिल appears to be bent or broken in water. अब देखिए, ऐसा होता क्या है बेटा? देखिए, सपोज हमारे पास में ये बीकर है. बीकर में हमने क्या किया? वाटर फिल कर दिया. तो वाटर फिल करने के बाद में क्या होगा? तो जहां से हमारे पास पेंसिल क्या होगी? अंदर जा रही होगी. ठीक, तो देखिए यहाँ पर सपोज हमारे पास एक पेंसिल है. तो ये पेंसिल जो है, वो एक्चुअल लेंथ जो पेंसिल की बेटा, वो ये है. हाँ सर, ऐसा लगता है टूट गई. हाँ, ऐसा लगता है ना टूट गई है. तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन है, देखिए ना. तो देखिए, ये पेंसिल जो हमारे पास यहाँ से शार्प हो रखी है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी रेज ऑफ लाइट हमारे पास आएगी बेटा, वो देखो कैसे आएगी. देखो, इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ, तो इस पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट ऐसे आएगी बेटा. यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ओके, तो व्हेन वाटर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर, वाटर इज एंड यहाँ पर क्या होगा बेटा? एयर होगी. तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट होगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी. यस और नो? तो देखिए, आपको ऐसा यहाँ पर आप अपनी आंख लगा करके देख रहे हो कि हाँ, रे कहाँ से आ रही है. तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है बेटा? इसी पॉइंट से आ रही होगी. यस, और यहाँ से अगर नॉर्मली अगर कोई रे हमारे पास, रे ऑफ लाइट जो फॉल होगी ऐसे इस टिप पर आ रही होगी, वो अनडेविएटेड पास होगी बेटा. देखिए, हाँ या ना? हाँ. है ना? है ना? तो यहाँ से जो भी रे हमारे पास पॉइंट से आ रही होगी, नॉर्मली वो फॉल होगी, तो वो रे बेटा अनडेविएटेड पास होगी. ठीक है, तो देखिए, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गई, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हो गई. तो ये जब दोनों इंटरसेक्ट करेगी, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी. देखो यहाँ पर, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है बेटा, जो पॉइंट पेंसिल का टिप है, तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो यहाँ पर फॉर्म होगी. तो इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी बेटा? इस पॉइंट पर होगी बेटा. तो जो आपको पेंसिल जो ब्रोकन दिखाई देगी, वो कहाँ से दिखाई देगी? वो देखिए, यहाँ से ऐसे आई, और ये यहाँ पर जाएगी, और ये यहाँ पर आई, और ये ऐसे. सर, फिर उस पॉइंट से सीधी दिखेंगी पेंसिल. हाँ, इस पॉइंट के ऊपर के बाद तो ऊपर तो सही दिखाई देती है बेटा. इनसाइड द वाटर जो होता है, वहीं पर तो दिखाई देती है आपको पेंसिल, जहां से पॉइंट पेंसिल जो है अंदर जा रही होती है. हाँ या ना?
होता है ना बेटा, है ना, जहां से पेंसिल अंदर जा रही होती है वहीं से वो आपको ब्रोकन दिखाई देती है। यस और नो? तो इसलिए आपको जो पेंसिल है बेटा वो कैसे दिखाई देती है, ब्रोकन दिखाई देती है। तो ये क्या होता है बेटा, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। A coin in water tank appears less deep than its actual depth. Yes or no, beta? And why it happens? Because when, suppose this is a water tank, and when water is filled inside the tank and a coin is placed in the water, suppose a coin is placed here, so the rays are coming from the water like this. When light rays are enters from rarer to denser to rarer medium, then what happened? Then it bends away from the normal. Away from the normal means to say ray will bend like this, and the ray which are coming on this path, and when a ray of light which is falls normally will reflect undeviated. So here the rays of light are intersecting to each other. So the position which appears to our eyes will be like this, and the actual depth of the coin is, we can see here, is d, and the depth which appears to us is d dash, and here d dash is the apparent depth, and d is the actual depth. तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास में क्या होगा बेटा, apparent shift in the position of sun at sunrise and sunset. ओके बेटा, तो देखिए सनसेट और सनराइज के टाइम पे क्या होगा कि जो सन है उसकी एपरेंट पोजीशन हमें दिखाई देगी, एक्चुअल में सन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, हमें जो सन दिखाई देगा वो एक्चुअल सन नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है बेटा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, atmospheric diffraction, the actual position of sun is not visible to us, is not visible to us at the time of sunrise and sunset। ये क्या होगा बेटा, अर्थ होगी। यस, एंड इसके अराउंड जो हमारे पास होगा, इसके अराउंड जो होगा क्या होगा बेटा, एटमॉस्फेयर होगा। यस, इसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा बेटा। तो एटमॉस्फेयर हमें पता है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर में जो भी एयर होगी बेटा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा बेटा, when light rays enters from rarer medium to denser medium, then what will happen, they bends towards the normal. So here let's consider that it is the sun। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास एक्चुअल सन की पोजीशन होगी। तो देखिए हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास में ये लाइन होगी बेटा, ये हॉरिजॉन्टल होगा बेटा। तो देखो सन अभी यहाँ से राइज हुआ नहीं है, ठीक है, सनराइज होने वाला बट हुआ नहीं है। तो यहाँ से जो भी लाइट रेज आएंगे बेटा वो इस तरह से आएंगे, देखिए। और ये जो सनरेज होंगे बेटा, सनरेज जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होंगी, एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ही होगा बेटा, देखिए। और जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में ये जो रेज ऑफ लाइट होगी बेटा ये क्या करेंगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होंगी कि नहीं होंगी, बताइए। टूवर्ड्स नॉर्मल जब ये रेज शिफ्ट होंगी
टुवर्ड्स नॉर्मल जब ये रेज शिफ्ट होंगी तो ये रेज शिफ्ट होने के बाद में कुछ ऐसी हो जाएगी, देखो, है ना। और यहाँ पर अगर कोई पर्सन हमारे पास होगा तो वो क्या कर सकता है बेटा, इन रेज ऑफ लाइट को देख सकता है। बट इन रेज ऑफ लाइट की एक क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है बेटा, कि दैट दीज रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट पोजिशन। देखिए इनकी जो डायरेक्शन है बेटा वो इस तरह से होगी, तो मैं अगर इनको बैकवर्ड में एक्सटेंड करूंगा तो देखो ध्यान से, इनकी जो पोजीशन होगी बेटा ये दिखाई देगी आपको, एंड यहाँ पर आपको Yes. यहाँ पर आपको लगेगा कि जो सन की जो एक्चुअल पोजीशन है बेटा वो क्या है, ये है। जो सन की एक्चुअल पोजीशन है बेटा वो क्या है आपके पास में, ये पोजीशन है आपकी, जबकि सन एक्चुअल में वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सन है, ये सन की कौन सी पोजीशन होगी, अपरेंट पोजीशन होगी। सर ये पोजीशन चेंज होती रहेगी ना? अपरेंट पोजीशन, हाँ बेटा, ये होगी अपरेंट पोजीशन और ये होगी एक्चुअल पोजीशन। Actual position, and due to the atmospheric refraction it appears the sun is present at this position, which is apparent position, but actually sun is not present there. Yes or no, it is appearing only. And जो यहाँ से जो अभी सन एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन ये है हमारे पास में, सन यहाँ से मूव करने के बाद जब यहाँ पहुंचेगा तो इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन होगा बेटा, यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन हमारे पास होगा वो 2 कितना minutes. होगा, वो होगा 2 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। यस, तो 2 मिनट के बाद में आपको एक्चुअल सन बेटा दिखाई देने लगेगा। यस और नो, तो इसे हमारे पास बोला जाता है कि टाइम डिले कितना होगा, कि कितने टाइम के बाद में सन आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कितना शिफ्ट उसमें टाइम में होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर इसको देखते हैं। सेम हमारे पास में क्या होगा बेटा, जब सन एक्चुअल में सनसेट होने वाला होगा तो एक्चुअल में वो सन सेट हो चुका होगा, बट हमारे पास में देखो यहाँ पर सन पहले राइज हो चुका है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, सर फिर अर्ली। जो दिखाते हैं कि सनराइज कितने बजे होगा, वो अपरेंट पोजीशन दिखाते हैं या एक्चुअल पोजीशन दिखाते हैं? बेटा वो तो एक्चुअल Sorry, time. वो एक्चुअल टाइम दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लो आपको बोला गया है, जैसे सुबह आपको न्यूज़पेपर में आपका टाइम आता है कि सनसेट का टाइम क्या होगा और सनराइज का टाइम क्या होगा। ठीक है, तो उसमें जब सनराइज का टाइम होता है ना बेटा, सपोज उसमें आपको दिया हुआ है 7:15 का सनराइज। यस, तो आपको 7:15 का सनराइज दिया हुआ है ना बेटा, तो वो इसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर पहुंच चुकी है, वो टाइम है। तो अगर उसके सनराइज के पहले एक्चुअल में जो आपको जो अपरेंट पोजीशन दिखाई देगी वो 7:13 पे ही दिखाई देने लगेगी। अब 2 मिनट तक आप उसको कंटिन्यूस देखते रहोगे तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, वो इंक्रीज होती जाएगी यहाँ पर जब वो एक्चुअली वहां पर पहुंचेगा। ओके, एट द टाइम ऑफ सनसेट व्हाट विल हैपन, सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। ओके, यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, अपरेंट पोजीशन जो हमें दिखाई देती है बेटा, वो किसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, हॉरिजॉन के रेस्पेक्ट में बात। हॉरिजॉन हमारे पास में ये होगा, देखिए तो देखिए यहाँ पर अब बात करें तो एक्चुअल जो पोजीशन होगी सन की बेटा वो ये होगी। तो सन यहाँ से देखो सनसेट हो चुका है, एंड यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट होंगी बेटा वो कैसे जाएंगी, देखिए सन से रेज ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, और बिकॉज द रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम a very large distance, so it appears to be a parallel beam of light. Yes or no? And after the refraction, when it enters to the atmosphere of the earth, then it bends towards the normal, and the person standing on the earth will see the apparent position of the sun, and the apparent position of the sun appears to be here like this, and this will be the apparent position of sun, and this is the actual position of the sun. Yes, तो जो रेस ऑफ लाइट होगी बेटा वो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, apparent position of the sun से। अब देखिए यहाँ पर बेटा एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जब आप इवनिंग टाइम पे या मॉर्निंग टाइम पे जब सनराइज और सनसेट होता है तो आपको जो सन से जो भी रेज आती है या सन के जो कलर होता है बेटा वो कैसा दिखाई देता है आपको, रेडिश ऑरेंज। रेडिश दिखाई देता है, हाँ या ना, या आप बोल सकते हैं कि रेड दिखाई देता है,
ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में क्या होता है बेटा, जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट होते हैं बताइए? Vidyar. प्योर होता है ना। तो देखिए व्हाइट लाइट में हमारे पास में क्या होगा बेटा, प्योर हमारे पास कलर्स होते हैं। ठीक है, अब विद्युत में अगर मैं बात करूं तो वॉलेट लाइट की जो वेवलेंथ होगी बेटा, वो सबसे ज्यादा होती है कि सबसे कम होती है? सबसे कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा सबसे स्कैटर होगा। सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, सबसे ज्यादा स्कैटर होगा बेटा। तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो वो स्कैटर हो जाएगा, देन इट इज नॉट विजिबल टू अस। बट रेड लाइट जो होता है बेटा, रेड ऑरेंज और येलो का जो मिक्सचर होता है वो स्कैटर नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई द रेडिश ऑरेंज कलर अपीयर्स टू अस एंड एट द टाइम ऑफ इवनिंग। एंड वेवलेंथ होने की वजह से क्या होता है बेटा, वेवलेंथ अगर हमारे पास में ज्यादा होगी, है ना, वेवलेंथ ज्यादा होगी, देन इट कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस, it can travel a larger distance as compared to the less wavelength light। तो यहाँ पर से क्या होगा बेटा, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा, रेड की होगी, रेड। है ना। लेमडा जो रेड का होगा वो सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए जो डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा बेटा रेड, वो भी सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए हमारी आईज तक जो कलर आता है वो कौन सा कलर आता है सर, रेड कलर आता है। इसीलिए इवनिंग टाइम पे और सनसेट सनराइज सनसेट के टाइम पर जो सन है वो कैसा दिखाई देता है बेटा, रेडिश दिखाई देता है। यस और नो? यस। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें बेटा लैम्डा वेवलेंथ की और लैम्डा रेड की, तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास होता है कि सिंपली इसको नोट डाउन कीजिएगा बेटा कि लैम्डा वेवलेंथ वॉयलेट का सबसे कम होगा, देन उससे बड़ा कौन सा होगा बेटा, लैम्डा इंडिगो का होगा, देन उससे बड़ा कौन होगा, लैम्डा ब्लू, देन उसके बाद ग्रीन। then lambda yellow, then lambda orange, and then lambda। यस। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का टर्म कैसा होगा बताइए, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी। रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कम होने से क्या होगा बेटा, देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, लैम्डा इंटू स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है बेटा, देखिए हाँ या ना, हाँ सर। वन अपॉन टाइम होता है ना बेटा, इसी को तो हर्ट्स लिखते हैं हम, यूनिट होती है जो। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी बेटा वन अपॉन टाइम होगा। यस। अब अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी अगर रिड्यूस होगी बेटा, तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब जो डिस्टेंस वो पहले ट्रेवल कर रहा था वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, टाइम पीरियड बढ़ गया तो। यस और नो? यस। यस। दैट्स व्हाई जो रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा कम होती है और वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू द अदर लाइट रेज। नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है बेटा, देखिए एट द टाइम ऑफ नाइट स्काई, तो नाइट स्काई में क्या होता है, देखिए अर्थ की पोजीशन बेटा ये होती है, देखिए यस और नो। और इसमें अर्थ में हमारे पास में क्या होता है, ठीक है, वेरियस हमारे पास में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यस और नो। और डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ में हमारे पास में क्या होता है, एटमोसफेयर में रेन ड्रॉप्स भी होती है बेटा। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास में स्टार्स होंगे, तो स्टार्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं बेटा। देखिए मैं मान लीजिए अगर मैं एक स्टार की बात करूं बेटा, एक स्टार यहाँ पर है, ठीक है, तो उस स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन होती है वहां से सनरेज बेटा आती है ऐसे, तो सनरेज वहां से जो आती है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, यस और नो। तो जब सनरेज जैसे ही वो एटमोसफेयर में आती है बेटा, तो एटमोसफेयर में आने के बाद में क्या होता है, डिफरेंट लेयर की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई इट रिफ्लेक्ट्स मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो क्या होता है, तो एक्चुअल पोजीशन यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ बेटा तो यहाँ पर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर ये यहाँ पर गई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद में फिर ये आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए बेटा, तो हमारे पास में डिफरेंट रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएगी,
बेटा जो स्टार्स होते हैं वहां से एक ही लाइट रे ऑफ लाइट आती है कि बहुत सारी रेज आती है, बताइए। बहुत सारी होगी। तो वहां पर क्या होगा बेटा, ये रे यहाँ से हुई, ठीक है, ये आने के बाद में फिर ऐसे आएगी, ठीक है, तो ये रे भी यहाँ से आने के बाद में इस वर्टिकल से टकराई, यहाँ से टकराने के बाद में फिर यहाँ से टकराई और फिर यहाँ पर आई, ठीक है। तो देखो सब अगर रेस के आप देखोगे बेटा तो इसकी सबकी सर वो पोजीशन किससे टकराती है? 10 पार्टिकल्स ऑफ एटमोस्फियर। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सनरेज जो होती है बेटा, विंडो में से कभी कभी छोटा सा होल होता है, तो वहां से जब सनलाइट आती है तो आपने देखा होगा पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, यस सर। है ना, उड़ते हुए दिखाई लाइट देते हैं ना उसका। स्कैटर होती हाँ लाइट स्कैटर होती है, तो वहां पर जो आपको लाइट का पाथ विजुअलाइज हो जाता है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एटमोस्फेयर में हमारे अराउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि तीनों रेज की जो एक्चुअल पोजीशन होगी बेटा, है ना, तीनों रेज की वजह से जो सन की जो यहाँ पर स्टार होगा उसकी जो पोजीशन बन रही है वो क्या डिफरेंट होगी बेटा, देखिए, हाँ या ना। इसकी वजह से अगर मैं बात करूं एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार कंटिन्यूस चेंज हो रही है, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन पोजीशन आपको स्टार ऐसा दिखाई देता है कि वो कैसा कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, वो अपनी पोजीशन से बार बार पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है। That's why the actual position of the sun is star is not appears to us, and the apparent position of the star is changing continuously due to the multiple refractions of the light rays when it enters into the atmosphere of the earth. सर एक्चुअल पोजीशन जो स्टार की रहती है वो कांस्टेंट रहती है, पर जो ये अपेरेंट पोजीशन चेंज होती रहती है ना। हाँ बेटा, सन जो स्टार जो है वो तो अपनी एक पोजीशन पे फिक्स रहेगा। स्टार तो क्या है बेटा, एक जगह पे फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है। बट वहां से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती है। एटमॉस्फेरिक लेयर से बेटा देखो ये, हाँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट रहेगा। हाँ दोनों, हर जो रिफ्लेक्टिव जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं तो उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। कहीं पर डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर डेंसिटी कम होगी, एंड ड्यू टू द मल्टीपल डेंसिटीज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर विल बी डिफरेंट, एंड ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स that's why the actual position of the star is not fixed. Yes, and it appears to सर be अपेरेंट twinkle. पोजीशन नहीं, एक्चुअल पोजीशन ऑफ बेटा, जो एक्चुअल पोजीशन जो स्टार की है वो आपके अकॉर्डिंग फिक्स नहीं रहेगी ना। आपको तो कैसा लगेगा कि सन वहाँ जो स्टार है वहां पे फिक्स है ही नहीं, वो तो बेटा ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको तो क्या दिखाई देगा, उसकी अपेरेंट पोजीशन दिखाई देगी। और इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर बेटा, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हमारे पास होंगे, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से जो लाइट रेज है उनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी बेटा, कम ज्यादा हो सकती है। जब लाइट की जो यस इंटेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, तो उस केस में क्या हो सकता है बेटा, जब लाइट इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी तो आपको कैसा दिखाई देगा कि वो ट्विंकल कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सिंपली यहाँ पर अगर हम इसका रीजन मेंशन करना चाहें बेटा तो क्या होगा, ड्यू टू द atmospheric refraction of light rays, stars appears to be twinkle. And why it happens? It happens due to the variation of refractive index of different atmospheric layers. The light rays coming from the star pass through these layers, change its path, and the amount of light is not always same. So the intensity of light reaching to us results
in change in apparent position of star, which is called twinkling of star. Okay, let's start laws of refraction. Okay, so what happens when a ray of light enters from one medium to another medium? So the light ray which is traveling in the medium one is called Incident incident ray. And suppose the refractive index of the medium one is mu1, and the light ray is entering from one medium to another medium. The incident ray making an angle with the normal, which is called angle of angle incidence. of incidence. Incident. Angle of incidence. Angle of incidence when a light enters from one medium to another medium, which is medium 2, having the refractive index mu2. When light enters from one medium to another medium, then it bends from its original path. And here you can see that the second medium is denser than the medium 1. So here the ray will bend towards the normal. So the angle made by the refracted ray is called angle of Refraction. angle of refraction. Angle of refraction. So the ray which travels in the second medium is called refracted ray. Yes or no? So what we have, there are two laws of refraction. First law is the incident ray, normal, and refracted ray All lie on the same all lie in the same plane at the point of incidence. point of incidence. Very good. And what is the second law? Second law says that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. And it is called refractive index. Yes or no, beta? It is called refractive index. So according to second law, what we can say, that sine I upon sine R is always constant, and it is also known as the refractive index. So basically what we can say here, sine I upon sine R is equal to, हमारे पास होता है बेटा mu2 upon mu1. Yes, mu2 upon mu1, and mu2 upon mu1 को हम कैसे रीड करेंगे बेटा? mu2 with respect to mu1. तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा बेटा? Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. It is a relative refractive index. Yes. So how we read it? We can write here mu1 sine I is equal to mu2 sine R, and this is also called Snell's law. And how we read it? Refractive Medium 2 with index respect to medium. of
refractive index of medium 2 with respect to medium 1.